सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हम ही परमात्मा हैं तो फिर मन से जुड़कर हम जीव बन जाते हैं, तो इस बात को क्यों भूल जाते हैं? दूसरा, जब ये सारी दुनिया और उसमें उपस्थित हर वस्तु जीव भी माया है, तो फिर हमें पता कैसे चला इस सृष्टि पर कि ये सब माया है और हम असल में परमात्मा है? ऐसे समझिए आपके आप नींद में जब सपना देखते हैं, नींद में ही सपना देखेंगे या खुली आंख देखेंगे? जब आप सो रहे हैं, अच्छा आज रात आप क्या सपना देखेंगे, क्या आप ये तय कर सकते? नहीं कर सकते। जो आ गया सो आ गया। हाँ, आपका स्वप्न समझिए ऐसा है जैसे इस समय प्रेजेंटली जो AI यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट डज इट डू? All the information which is present, it gathers that and uses a certain algorithm to create an essay or letter or resignation letter or any kind of application or any kind of photographs or videos or presentations can be created through an AI, right? But say if all the data is taken away, and then if we ask the program to give us an essay, a photo, or a video, can that intelligence work? Absolutely not. So it's very interesting. Same rule, the same thing can be said to be applicable on our subconscious mind. So our subconscious mind has been fed by so much information through our five senses, knowledge and action. All information is going in there. In dream, the intelligence, and not artificial, the intelligence of our subconscious mind uses it to create a dream sequence. This means your dreams will be coming out of your own subconscious, the info, the data which was fed into it. But when the dream is happening, do you realize it is a dream when it is happening? It's only on waking up. There's no way to see a dream as a dream. Or is it easy to see a dream as it is a fake one and not real? Or would we see a dream only then when we are bereft of the reality or the truth is not acknowledged at all? So only on waking up you say, oh, that was a dream. So your dream is a creation of all the information taken in knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously. So your own subconscious is creating a dream, and yet you totally forget it is a dream. You think it is real.
Your mind is the minuscule Maya. And Maya is the magnified, magnificent, preposterously great and big and with great infinity. And that is called Maya. So the dream created by your mind fools you. So this Maya creates this illusion of world, and so your intellect gets fooled. So you totally forget who you are, and you see this dream world as real, although it is not real. This is something very deep, and it requires a lot of contemplation, lot of listening, and then it will register in your intellect. Not before that. If I begin to recite Shakespeare to a 3-year-old baby, will the baby understand? So Vedanta is like the highest knowledge, and you are just babies. So it seems like, what's it's being said? ये सच कैसे हो सकता है? अपने ही मन के बनाए हुए स्वप्न को हम सत्य मानते हैं जब तक वो दिख रहा होता है. क्या स्वप्न आएगा आप जानते नहीं. स्वप्न में डर जाते हो, तुम चीखे मारते हो. मैं अभी एक चिट्ठी पढ़ रही थी, बोले बड़े डरावने सपने आते, इतने कि सोना मुश्किल है, सोने के नाम से डर लगता है. तो इतने भयंकर सपने क्यों आते? अब उसके पीछे कई कारण हैं. कभी कभी स्वप्न शरीर से रिलेटेड होते, कभी कभी स्वप्न भावनाओं से रिलेटेड होते, कभी कभी स्वप्न हमारे एम्बिशन से रिलेटेड होते, कभी स्वप्न जो हमने पढ़ा सुना टीवी सिनेमा में देखा उससे रिलेटेड होते. So the dream can be physical, emotional, depending on your samskaras, or depending upon what information went into your mind. जैसे आपने न्यूज में देखा कि कहीं भूचाल आ गया है, बड़े लोग मर गए, लास्ट चीज वो थी जो आपने देखी या दिन में कभी देखी, तो अंदर थोड़ा तकलीफ होती देख के कि ये क्या है, बड़ा भयंकर है. लो, और आज सपना आ गया कि भूचाल आ रहा है और तुम फंसे हुए हो बिल्डिंग में, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो. जो मन देखता है वो उसी को इमिटेट करने लग जाता है. आपने कुछ रील, सिनेमा, मूवी, सीरियल, सीरीज कुछ देखा जिसमें एक आदमी की जो बोट है वो समंदर में तूफान में फंस गई है. आपने वो देखी और फिर कभी उसी दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ साल या कुछ जन्मों बाद आपके मन ने सपना बनाया, आप बोट में हो, तूफान में हो, फंसे हुए हो, हालात बड़े खराब है, बिजलियां चमक रही हैं, कोई मदद नहीं है और तुम बचाओ 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 करो, तुम्हारा दम घुट रहा है और तुमको तैरना नहीं आता है और लहरें बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी बोट जो है वो डूबी 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 डूबी. और जब नींद खुली तो पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ है, दिल धड़क रहा है. अब ये क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में गई उसी से स्वप्न बना है, तुम्हारे ही मन ने बनाया है. और देखो खुद ही मन डर गया है. ऐसा हुआ कभी कि आपने ऐसा कोई सपना देखा कि खुद ही डर गए, ये क्या था? सो अज्ञान जो है वो वही काम कर रहा है. हर मन अज्ञान का बच्चा है, इसलिए हर मन अज्ञानी है और इसलिए उस अज्ञान का दुख भी झेलना पड़ता है. तुमको क्यों? भाई ऐसा ही है, इसमें क्यों का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है. क्यों नहीं कह सकते आप, क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये है.
अब ये जो बात आती है कि सब संसार में सब जीव माया में फंसे हुए हैं, तो फिर ये कैसे पता चला कि सृष्टि में सब कुछ माया है? देखिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुणों से प्रकृति बनी है। इन्हीं 3 गुणों से ये प्रकृति में चीजें बनती हैं। तो इसका मतलब ये तीनों सब जगह में मौजूद है, लेकिन उसकी रेशो बदल जाती। जैसे पशु में बुद्धि उतनी नहीं है तो सत्वगुण की कमी है, उसके पास रजोगुण ज्यादा है, इसलिए भागता फिरता। पेड़, पत्थर, पहाड़, इनमें तमोगुण ज्यादा है, जरा भी क्रिया नहीं है। जो क्रिया है वो इतनी बारीक है, जैसे एक रॉक की भी उम्र होती, तुम्हें मालूम? पहाड़ की भी उम्र होती, माउंट एवरेस्ट की भी एक उम्र, और वो सबसे यंगेस्ट पहाड़ है। पहाड़ की भी कोई जूलॉजी कर रहे हैं स्कूल में? नोबडी। तो पत्थरों की भी उम्र होती, सूर्य की भी एक उम्र, चंद्रमा की भी उम्र है। ये जो सूर्य चंद्रमा जो हमारी इस आकाशीय गंगा में है, इसकी भी एक उम्र है। सूर्य का जन्म होता है, ये जवान होता है, फिर ये भी एक दिन बूढ़ा होता है, और फिर ये भी एक दिन इम्प्लोड कर जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। क्रिया हो रही है, लेकिन सूर्य में अपने आप में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं है, इसलिए सूर्य ये नहीं जानता है कि वो सूर्य है। थोड़ा बारीक है ये बात, ध्यान से सुनना है इसको। आई नो दिन भर तुम लोग पता नहीं क्या कुछ, ये वर्कशॉप वो वर्कशॉप, ये उठा पटक, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, तो इस टाइम तक आते आते बैटरी लीक हो जाती है। इसीलिए आपको मीठा शरबत पिलाते हैं, शेर जवान, इसे थोड़ा सा चौकस रहना। कमर सीधी कर लेना, नींद नहीं आएगी। जहां ऐसे बैठोगे खर खर हो जाएगी शुरू। आंख नहीं पूरी खोलनी, सिर्फ कमर सीधी कर ले, आंख आप ही खुल जाएगी। स्वप्न में हम अपनी ही बनाई दुनिया से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। अब मन क्या है? मन में 3 गुण हो सकते हैं। अगर आपने साधना की तो सत्वगुण बढ़ जाएगा। अगर आप साधना नहीं करते, खाली भागते दौड़ते भागते, मारा मुक्की, ये वो ये, तो रजोगुण है, ज्यादा चंचल बना देता है। तुमने देखा कई बच्चे होते हैं ऐसे, हो सकता आप ही ऐसे हों, वो कैंटीन में चले जाए ना, कहे क्या खाओगे? डोसा खा लो, नहीं बर्गर ही खा ले, नहीं पराठा खा लो, नहीं यही खा ले, तो नहीं ये ले लो, नहीं ये भी ले लो। वो ये जो दिमाग वाला है, किसी दुकान में शॉपिंग करने चला जाए तो 50 सूट खरीद देगा, नहीं देखेगा, सिर्फ देखेगा। हार के दुकानदार कहता मेरी माँ कोई ले ले, फ्री ले ले, बस जा। मैं ऐसे थोड़ी ले लूंगी फ्री, पसंद नहीं आ रहा है, मेरे वाला नीला नहीं है, नीले है पर मेरे वाला नहीं, अब कौन सा नीला चाहिए तेरे को? मन बिखरा हुआ है ना, टू मेनी चॉइसेस, बट डोंट नो व्हाट टू पिक, व्हाट टू डिसाइड। मैं कभी किसी स्टोर में जाऊं ना कुछ लेने के लिए, तो मेरे साथ जो जाते हैं ना, वो एक्चुअली बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। मैंने कहा ये क्या है? मुझे एक चीज चाहिए, मुझे मालूम है वो कहां पर है, किस सेक्शन में है। आई विल गो स्ट्रेट देयर, पिक द थिंग जो मुझे चाहिए, डू द पेमेंट एंड आई एम आउट। जब मैं दूसरों को देखती हूं ना, ये लूं कि ये लूं, कि ये लूं कि वो वाला लूं, नहीं ये अच्छा है, उस फिल्म में उसने पहना था ना, बहुत अच्छा था, नहीं पर मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो फिर ये ले लेती हूँ, नहीं इसमें और मोटी लोग, नहीं ये नहीं, तो मैं ये ले लेती हूँ, चल मैं ये ले लेती हूँ। ये जो चल रहा है ना, ये मन रजोगुणी है। You don't know what to pick because you don't know what you want.
दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। जूता लेने जाएंगे, मैं 2 घंटे कोई दुकान में, मैं एक मेरे साथ कोई गए हुआ, इतना लंबा टाइम लगा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जा रही हूं, टैक्सी ऑटो करके अपने आप आ जाना, हम नहीं वेट करेंगे तुम्हारी। क्लैरिटी नहीं है क्योंकि सत्वगुण की कमी है। क्लैरिटी नहीं क्योंकि रजोगुण बहुत ज्यादा है। क्लैरिटी नहीं क्योंकि मन में आलस बड़ा भरा हुआ है। तमोगुण है। जैसे तुम्हारी गाड़ी में तुम बैठो और फॉग आ जाए या कीचड़ गिर जाए विंड स्क्रीन पर, तो सामने नजर ही नहीं आएगा, तो कैसे चलाओगे गाड़ी? तो तमोगुण मतलब वेरी फॉगी माइंड, और रजोगुण मतलब बहुत चंचल मन, और सत्वगुण मतलब एकदम क्लियर। तो आप देखेंगे तो सारी दुनिया की जो चीजें हैं उनमें यही 3 गुण चलते हैं। तमोगुण से हमारा शरीर बनता है, सत्वगुण मिश्रण से हमारा मन बनता है, इंद्रियां बनती हैं। तो तम सत रज ये तीनों गुण सब जगह पर है। तीनों गुण कहाँ से निकले? प्रकृति से। प्रकृति क्या है? हम वेदांत में उसी को माया कहते हैं, योग में उसी को प्रकृति कहते हैं। द फर्स्ट stirring up which happened, which created the first form of the elements, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। अब रूट में सबके माया ही है, प्रकृति है ना, तो अज्ञान सबका रूट है। उसमें से 3 गुण निकले, तो उन 3 गुणों में एक चीज बहुत कॉमन और बड़ी होगी, और वो है अज्ञान सब में है। पेड़ में है, पहाड़ में है, पत्थर में है, जानवर में है, इंसान में है, सब में है। अज्ञान मतलब मैं नहीं जानता, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, मुझे किसने बनाया मैं नहीं जानता, जिंदगी का क्या लक्ष्य है मैं नहीं जानता। ये अज्ञान सब जगह। अब जिस परिवार या स्कूल में हम जाते हैं ना, तो वो हमें सिखाते तुम ये चाहो, वो तुम्हारा अंकल पायलट है तुम भी बनो, वो तुम्हारा अंकल कर्नल है तुम भी बनो, वो तुम्हारा मामा बिजनेसमैन है तुम बनो, वो तुम्हारा चाचा डॉक्टर है तुम भी बनो, वो बिजनेसमैन है तुम भी बनो। तो देख देख के ना तुम्हारा मन कहता है अच्छा चलो क्या बनूं क्या बनूं क्या बनूं क्या बनूं, चलो ये बन जाओ। बहुत लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं होना तो हम कुछ और चाहते थे, बन कुछ हम और गए।